ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨੇ ਜਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚੱਲਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਾਮਰਥ 'ਚ ਵਧੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ 3 ਪਾਰਟ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ क्या आप विश्वासी हो? अगर हो तो क्या आप इन पॉइंट्स को पूरा कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं कर रहे तो आपने इन चीज़ों को देखना है। हालेलुया। मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इसमें चेंज करांगा क्योंकि अनदर स्टेट्स ਦੇ जो लोग ਉਹ इस चीज़ों ਨੂੰ समझ लें तो मैं हिंदी में कंटिन्यू रखूँगा इस आज की टीचिंग को। क्योंकि बीते दिनों में जब पंजाबी में टीचिंग की गई तो पंजाबी की टीचिंग बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में ही टीचिंग आज की रखेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले फिर से बात करता हूँ कि आप परमेश्वर के नाम में अगर विश्वासी हैं तो जो पॉइंट्स आज मैं आपको दूंगा, आपने इन पॉइंट्स के अपने को देखना है। अपने पॉइंट्स के साथ आपने अपने आप को देखना है कि आप इन पॉइंट्स को पूरा कर रहे हो या नहीं। तो पहला पॉइंट्स जो आज का है, अगर आप विश्वासी हो तो क्या आप हर संडे चर्च जाते हो या नहीं? क्या आप खुदा के कलाम का वचन पूरा करते हो या नहीं? ये पहला पॉइंट है कि अगर आप विश्वासी हो तो आपका ज़रूरी है कि आप हर संडे प्रभु की हजूरी में, प्रभु के घर हो। क्या आप संडे घर में होते हो, अपने घर में, जब प्रभु के घर में, या आप संडे में काम पर होते हो या प्रभु के घर में होते हो? तो क्या आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो या नहीं? मैं पहला पॉइंट आपके साथ यही शेयर करूंगा कि आप समझे इस बात को। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, सबसे पहले वो देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को रचा और 7वें दिन रेस्ट की और परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया। और परमेश्वर ने कहा कि तू 6 दिन तो काम कर पर लेकिन 7वां दिन रेस्ट कर, विश्राम कर। और पुराने समय में इसको सब्बत के दिन करके मनाया जाता था। तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्या आप 7वें दिन भी काम करते हो?
क्या आप 7वें दिन घर में सोते हो, जब खाना खाते हो, जब पार्टीज करते हो, जहाँ शराबें पीते हो, जो क्या करते हो आप 7वें दिन? क्या आप इस पॉइंट को पूरा कर रहे हो? क्या आप 7वें दिन खुदा के घर में होते हो या नहीं? अगर तो होते हो तो मैंने बोला है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी आप अपने छुटकारों को पाएंगे, बहुत जल्दी आप परमेश्वर के नाम में बड़ी गवाहियों को रिसीव करोगे, क्योंकि आप खुदा के घर जाते हो और खुदा का वचन पूरा करते हो, और जो आपका पास्टर, आपकी चर्च आपको सिखाती है, आप उसके मुताबिक अगर सुनकर वचनों को करोगे और संडे लगातार आप कंटिन्यू परमेश्वर के वचन के मुताबिक चर्च को अटेंड करोगे, तो परमेश्वर के नाम में आप छुटकारे को पाओगे ही पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में कार्य करेगा ही करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप चर्च में जाओगे, अच्छी शिक्षा को सुनोगे, जो भी आपका पास्टर आपको सिखाएगा, प्रार्थना आप करोगे लगातार, और अपनी संगति जो आप नहीं छोड़ रहे, उसी के कारण परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन। तो मैं पहला पॉइंट आपसे यही शेयर कर रहा हूँ, अगर तो आप परमेश्वर के नाम में बिलीवर हैं, एज ए परमेश्वर को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आपका पहला कार्य यही है इस पॉइंट के हिसाब से कि आप हर संडे परमेश्वर के घर में हो, ना कि कामों पर। ओके, आपका फ़र्ज़ है, और परमेश्वर को अगर आप मानते हो, बैप्टाइज ले चुके हो अगर आप, तो आपका पहला काम ये है इस पॉइंट के हिसाब से कि आप हर संडे किसी भी मुसीबत, किसी भी हालात में, बारिश में, धूप में, छाँव में, ठंडी में, गर्मी में, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे नहीं, बल्कि उसको पूरा करोगे, और आप अपनी चर्च में जहाँ भी आप जाते हैं, आप वहाँ पर उस मीटिंग्स को अटेंड करोगे। आमीन। ये पहला विश्वासी की ज़िंदगी में एक कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, अपना उद्धारकर्ता मान लेता है और बपतिस्मा ले चुका है। अगर आपने नहीं लिया तो भी आप प्रभु को अगर ग्रहण कर चुके, आप जल्दी बपतिस्मा भी लें, और अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप परमेश्वर के घर में अटेंड करें, उसकी हुजूरी को, और अपने पास्टर से लेहन प्रेयर कराएं, शब्दों की प्रेयर करवाएं, वचन सुने, उनको बीज बोकर ब्लेस करें अपनी मिनिस्ट्री को, कि आपके ऊपर भी वो बरकतें आएँ। आमीन। तो जो भी खुदा के घर के कार्य हैं वो आप करें। जब आप चर्च जाओगे तभी आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइप को, अपने बीजों को आप बो सकोगे। तो आपने ये बात ध्यान देनी है चर्च, कि आपने सबसे पहले, अगर विश्वासी हैं तो आपने सबसे पहले परमेश्वर के घर में लगातार संडे संगति को अटेंड करना है। आमीन। ये नहीं कि आप चर्च को तो मानते हो, परमेश्वर को तो फॉलो करते हो, लेकिन जब आपका दिल करता है तब आप चर्च में जाते हो। ऐसा आप परमेश्वर का वचन नहीं पूरा करते, फिर आप विश्वासी नहीं हो, आप कच्चे पक्के से विश्वासी हो, आप अविश्वासी हो। तो जब बड़ी मीटिंग आती तो विश्वासी पुनः दिखाते हैं, और पार्टीज़ के चक्कर में या और किसी कारण के चक्कर में आप बड़ी मीटिंग्स को जाकर अटेंड करते हो, और उसके बाद कोई आप संगति नहीं करते परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के घर में आप कोई नहीं जाकर आप देखते, या परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से, जब आपका दिल करता है एंजॉय करने के लिए, आप चर्च में चले जाते हो और लगातार संगति नहीं कर रहे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुने, आप ऐसा करना बंद करें। अगर आप विश्वासी हैं तो बाइबल को ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन उसके घर में आओ, वचन को सुनो, आराधना करो, प्रार्थना करो, और प्रभु के घर की आशीषों को लो। आमीन। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उनको आदतों को आज छोड़ दें, और वचन के मुताबिक आप 6 दिन काम करके 7वां दिन परमेश्वर की हुजूरी में बिताएं और प्रभु के घर से आशीष लें। तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो आपने हर संडे संगति को अटेंड करना है। आमीन। तो मेरा विश्वास इस पॉइंट को आप समझोगे। आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को, और आप लिख कर इन्हें नोट कर सकते हैं, आप किसी को बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को शेयर करें ये बातें सब, कि आप अगर परमेश्वर मसीह में मानते हैं तो आपका पहला कार्य ये है कि आप लगातार संगति को अटेंड करें, क्योंकि अगर आप लगातार संगति को अटेंड नहीं करोगे, वो आग, वो फायर आपके जीवनों में बनी नहीं रहेगी। आमीन। वो वचन का प्रकाश आपको हर संडे जो आपका पास्टर के द्वारा आपको परमेश्वर का मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप प्रार्थना की ग्रेस को अपने जीवनों में नहीं ले पाएंगे, आप आराधना से दूर हो जाएंगे। आमीन। तो लगातार आपको परमेश्वर के घर में संगति को अटेंड करना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने
अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया, तो आपने संगति अटेंड करनी ही करनी है। अगर आप बिलीवर हैं, एज ए बिलीवर आपने परमेश्वर के घर में जाना ही जाना है। एवरी संडे एवरी संडे एवरी संडे, बड़ी हो छोटी हो मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, आपने हर संडे धूप छाँव हर मौसम में आपने संगति को अटेंड करना ही करना है। आमीन। तो ये आपका पहला पॉइंट है। मेरा विश्वास है ये आप